outcome is that we need to learn formulas और किस चीज के formulas हमने करने हैं. We need to learn or we need to calculate the area of and perimeter of circles, semicircles and quadrants. ठीक है, so हम याद जो करेंगे ना दो formulas वो area and perimeter of circles है. बाकी formulas we will calculate, like we will modify the formulas. ठीक है, I will tell you how you can modify. So first of all, let's write down the formulas, then we can solve worksheet questions, and then we will do questions from the book. This topic is in NSM 1 8th edition, right? So to write, we are going to learn formulas for circle. ठीक है, so circle नहीं बल्कि इसमें हम सारे लिखेंगे. So let's make a list of formulas. Area का formula and the formulas of perimeter. अच्छा, perimeter is a bit tricky, so you need to know how to you need to remember कि how can we change this formula. So here we can write down the shape. ठीक है, we have three shapes. First is a circle. ठीक है, so we are going to learn the basic formulas and then we will modify them to know the formulas of different shapes. ठीक है, you don't have word problems, straightforward questions है हमारे पास. ठीक है, so first of all let's learn the basic formulas. अच्छा, this is the circle and let's say this circle is having this radius. ठीक है, अच्छा एक आपने बात याद रखनी है, in the bigger classes also when you in second term of 7th class you will be having that topic volume and surface area. So 6 में आप cube और cuboid का volume and surface area करते हैं, 7th में you will do cylinders. ठीक है, और I think so शायद क्या नाम है, प्रिज्म्स. ठीक है, अब जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर में आपको पता है इट्स लाइक दिस. ठीक है, तो सिलेंडर का जो टॉप एंड बॉटम है इट्स ऑल्सो अ सर्कल. ठीक है, जहां पे भी जिस शेप में भी, चाहे वो 2D शेप है या 3D शेप है, जहां पे भी सर्कल आ जाता है ना, अब 8 में आप जाके स्फेयर करते हैं, स्फेयर इज लाइक अ बॉल. ठीक है, जहां पे भी आ जाता है ना किसी सर्कल, wherever the circle or the curved surface is involved, so pi is there. Pi is a must. ठीक है, जो pi है ना वो है ही circular shapes के लिए. So the area of the circle is pi r square, where r is the radius of that circle. ठीक है बच्चे, and the perimeter of circle. ये दो formulas तो आपने याद करने हैं. Perimeter is 2 pi r. ठीक है, राइट. अच्छा, कई जगह पे 2 पाई की जगह, बिकॉज वी नो 2 आर की जगह पे हम लिख देते हैं डी, तो पाई डी भी कह सकते हैं कई फॉर्मुलाज में मे बी. ठीक है, बट वी विल प्रेफर दिस फॉर्मूला 2 पाई आर, और हम इसी को अगर हमें डायमीटर भी गिवन है तो हम उससे रेडियस खुद निकाल लेंगे और हम उसको इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे. तो ये तो बेसिक फॉर्मूलाज हैं व्हिच वी नीड टू मेमोराइज. एरिया एंड द पैरामीटर. एरिया इज पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर का मतलब है दिस वुड बी अ स्क्वायर नंबर. ठीक है, और पैरामीटर इज 2 पाई आर. अच्छा, पाई की वैल्यू देन आई विल डिस्कस लेटर ऑन. सो नाउ वी आर हैविंग सेमी सर्कल, the second shape which will be coming, semicircle. What is a semicircle? So what is a semicircle? Half circle. Half circle. ठीक है, so semicircle is like this. देखिए, it's half circle, और we know area is the like inside of a shape is area. अब देखिए, area of circle is pi r square, so area Pi of r. semicircle would be Pi r. pi r square. No, pi r square divided by Square divided 2. by 2. This square is the power. इसका इस divided by 2 से हम इसको cancel out नहीं कर सकते, right? So its area of semicircle is, because this is covering half of the area which was there in the full circle, so it's just simple कि we will divide it with 4. Now comes the perimeter. अब देखिए, 2 pi r is the circumference of complete circle. ठीक है, now it is half, ये जो curved है. ठीक है, this semicircle is having 2 outer boundaries. Perimeter आपको पता है ना, perimeter is sum of outer सरफेस. ठीक है, अब देखिए ये वाला जो हाफ है, ये वाला कर्व्ड, ये तो हमें पता चल रहा है कि ये 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 होगा, राइट, बिकॉज दिस इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द फुल सर्कल. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस लेंथ? ये जो डाउन पे है, ये लेंथ क्या है? आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज दिस लेंथ? सर्कल में इसको हम क्या कहते हैं? Ma'am, it is like the व्हाट इज दिस ग्रीन पार्ट इन सर्कल? ये सर्कल है ना पूरा, ये सेमी सर्कल है, तो ये फिर पूरा सर्कल इस तरह है ना. व्हाट इज दिस पार्ट? Diameter. Very good. So this is diameter of the circle. ठीक है, so now the perimeter of semisphere or semicircle is pi r plus d. Pi r for the curved surface and d is for this line. ठीक है, so that will make it a formula for perimeter of semicircle. Is this point clear, Abdul Moeed and Abrish? Yes. Moeed, Yes, आपको भी ये चीज? All right, so we will memorize the basic formulas and then we will change the rest of the formulas. अच्छा, oh, ये मैंने क्या किया? So now comes the last point. ठीक है, last is the third formula is formula of quadrant. Quadrant means Ma'am, like the 1/4 of a circle. the 1/4. ठीक है, quad of a circle. So it's like this.
ठीक है, इस तरह की शेप भी आपके पास आ सकती है। अब आप देखें एरिया तो सिंपल है, एरिया का फॉर्मूला में तो क्या है, नाउ इट्स द pi फोर्थ r पार्ट, तो इसका square मतलब divided by 4. वेरी गुड, इट वुड बी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 4. इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट, दैट इज द पैरामीटर। अब देखें इसके भी हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं। अब ये जो कर्व्ड वाला सरफेस है ये वाला, तो इट इज बेसिकली ये पूरा जो डायमीटर है, ये पूरा जो होता है ना इसका सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। तो हमने इसका फोर्थ पोर्शन ले रहे हैं, हम इसका फोर्थ पोर्शन ले रहे हैं, सो वी नीड टू डिवाइड विद 4, so this will be pi r by 2, ठीक है, this surface area of this perimeter of this part, ठीक है। देखो टोटल सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई r, ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है 1/4 हमने लेना है, तो हम 2 पाई r को 4 से डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे दिस 2 इज कैंसिल्ड, सो ये पाई r by 2 बनता है, ठीक है बेटे, इज इट क्लियर? दिस इज द कर्व्ड सरफेस। अब देखिए यहाँ पर ऐड क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस लेंथ? अब्रिश या मुईद आप मुझे बताएं, ये अगर एक सर्कल है, व्हाट इज दिस लेंथ? ये जो लेंथ है ये क्या है? Radius. रेडियस, वेरी गुड। एंड व्हाट इज दिस? Radius दिस इज again. आल्सो अ रेडियस अगेन, Radius. सो इट इज 2r, यानी दो रेडियस मिल रहे हैं, तो हमें पता है कि 2r इज इक्वल टू d, तो इसका मतलब है दिस फार्मूला फॉर क्वाड ऑफ अ सर्कल इज पाई r by 2 plus d, द डायमीटर, ठीक है बेटे। सो एनी क्वेश्चन इन दीज formulas, because these are the formulas which we are going to use today. No, ma'am. So are these clear? I can hear Zainab's voice. Abrish and Abdul Mueed, bete, are you clear with the formulas? Yes, ma'am. All right. So we will memorize the basic formulas of circle and then we will, adjust them. अगर आपकी memorization अच्छी है तो you can remember the rest of the formulas as well. ठीक है? So now let's do the worksheet. This is the only worksheet in this topic. ठीक है? So first question is calculate the perimeter of each of the semicircle. Now let's look at this part. Give your answers to 1 decimal place and include suitable units. 1 decimal place पे round off करना है आंसर को और आपने suitable unit लिखनी है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है, हम इसको व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। आपको एक ये बात याद रखनी है कि पाई विल बी, दो वैल्यूज यूज होती हैं पाई की, ठीक है। अच्छा, बल्कि देयर आर 3 वेज। तो पाई के लिए एक तो तरीका ये है कि आप इफ यू नीड टू पुट पाई, आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट पाई, तो यू कैन यूज पाई की वैल्यू एज 22/7, ठीक है, और 3.14। अब यहाँ पे हमने 1 डेसिमल प्लेस पे करेक्ट करना है, सो वी विल यूज 3.14 मोस्ट प्रोबेबली। 22/7 भी यूज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। थर्डली एक और चीज आपको ये याद होनी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस में इट इज रिटन इन द क्वेश्चन दैट आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। अब इसका ये मतलब है इन टर्म्स ऑफ पाई, इसका ये मतलब है कि व्हेन यू आर पुटिंग when you are using the formula, now put all the other values remain pi as it is. Pi की वैल्यू नहीं डालनी, because they know you don't have calculator, so you can just skip putting value of pi, और आप आंसर इस तरह दे सकते हैं, जैसे आप लिखें 28 pi is the, for example, parameter of this सर्कल और सेमी सर्कल सेंटीमीटर, तो ये पाए आप एज इट इज आंसर में लिख सकते हैं। जैसे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 में, आई कैन जूम अ बिट, क्वेश्चन नंबर 2 में इट इज रिटन गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई and include a suitable unit. Now they are saying that give your answer in terms of pi, इसका मतलब है we can skip putting the value of pi in the formula, तो ये ज्यादा आसान हो गया। अब पेपर में जैसे it is 2 marks question, so it's easy that you're not putting the value of pi, ठीक है। सो पाई इज इरेशनल नंबर, हमें वैसे भी पता है, और इरेशनल जो नंबर्स होते हैं ना, दे आर नॉट हैविंग द एग्जैक्ट वैल्यू। जो पाई की ये वैल्यूज है ना 22/7 और 3.14, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ठीक है। सो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं यूज कर सकते, तो इसलिए वी जस्ट पुट वैल्यू, हम पाई रहने देते हैं उसको, ठीक है। ये बात क्लियर है ना कि अगर मेंशन नहीं होगा तो वी विल यूज 22/7 या 3.14। अगर मेंशन होगा कि यू कैन आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, तो फिर हम पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, जैसे इन क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हमने पैरामीटर निकालना है इन द मेंशन्ड इज, लेकिन हम इसके पैरामीटर के साथ साथ एरिया भी निकाल लेंगे, सो दैट वी कैन प्रैक्टिस मोर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। वी कैन सॉल्व 3 पार्ट्स इन द क्लास एंड 3 पार्ट्स यू कैन सॉल्व एज अ होमवर्क, ठीक है। सो लेट मी सॉल्व लास्ट 3 पार्ट्स, ठीक है। आई कैन सॉल्व डी, ई एंड एफ पार्ट, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ देम 15 millimeter. So question number 1, A part is, oh sorry, I think so D part. This is a semicircle like this, and the diameter is 15, Ma'am, radius is 15 millimeter. Radius is 15 millimeter. Radius is 15 millimeter. ठीक है, this length is given as 15 millimeter. उन्होंने mention भी किया हुआ, you can see in some of the parts radius is given, some of the parts diameter is given. So ये यहाँ पर इस तरह mention किया गया, ठीक है। So we need to find area and perimeter, दोनों निकालेंगे। उन्होंने perimeter का, हम दोनों निकाल लेते हैं, और we need to use pi की value, so we will use suitable value of pi. So first of all let's find out the area. आपने होमवर्क में भी दोनों चीजें निकाली हैं। What is the formula of area of semicircle? Pi r square divided by 2. Pi r square divided by 2.
ठीक है, अब यहाँ पर आपको सारे वो काम आएंगे क्वेश्चंस या स्क्वायर नंबर्स। अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ बिकॉज यहाँ आर स्क्वायर है तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे हम पाई की वैल्यू यूज करें 22/7, ठीक है। सो आप देखें 22 विल कम हेयर, 7 विल कम हेयर, मल्टीप्लाइड विद, अब आर स्क्वायर लेना है। तो समटाइम्स व्हेन यू राइट 15 स्क्वायर तो आप अगले स्टेप में भूल के उसको 30 लिख देते हैं बिकॉज समटाइम्स आप भूल जाते हैं दिस इज अ स्क्वायर नंबर। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट जस्ट राइट इट डाउन, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो नाउ यू कैन सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई द रिमेनिंग नंबर्स, ठीक है। इस तरह लिखने का एक और फायदा ये होता है कि अगर यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो वो हो जाती है। जैसे 2 को यहाँ कैंसिल कर दें, 11 आ जाता है, ठीक है। 7 इज नॉट like the any of the number is not divisible by 7. Now we can use, can anyone tell me what is the square of 15? 15 square क्या है? What is square of 15? Abrish and Moeed, what was square of 15? 225. 225, ठीक है। सो नाउ वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 225 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से। 11. देखो एक आसान तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन का, व्हेन यू स्प्लिट द नंबर, ये मेंटल मैथ्स का तरीका है। 2250 बनता है if you multiply it with 10 and if you multiply it with 1 तो ये 225 बनता है। तो the answer is 5, 7, 4 and 2, ठीक है। So now you need to divide it with 7, ठीक है। आपने 1 डेसिमल प्लेस पे आंसर करना है, इसलिए हम 2 डेसिमल प्लेस पे आंसर निकालेंगे और फिर हम उसको डिवाइड कर लेंगे। सो आई एम चेंजिंग द कलर ताकि इसका आंसर आपको यहाँ पर नजर आता रहे। लेट्स से रेड कलर यूज कर ले। 7 3s are 21, 3 21, then there is 3, this 7 will come down, 37. Now 7 5s are 35, 2 and then this 25, 3.571 is 7 3s are 21, कितना आता है बेटे? 40 और ये डेसिमल आ जाएगा। क्या आता है? 353 0.571428 and it goes on and on. चले 571, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि करेक्ट योर आंसर ऑन 1 डेसिमल प्लेस। ये हमारा वो लिंक और एस्टिमेशन का टॉपिक। सो किस पॉइंट पे हमने राउंड ऑफ करना है? 1 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है? कौन सा डिजिट अंडरलाइन करना है? किस डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना है? अब्रिश, मोईद, किस डिजिट तक राउंड ऑफ करना है? 1 डेसिमल पॉइंट पे राउंड ऑफ करना है। जल्दी से बताएं बेटे, विच डिजिट विल बी अंडरलाइन? Ma'am, 5 will be underlined. 5 will be underlined. This is the 1 decimal place. 1 decimal place का क्या मतलब होता है कि 1 digit after the decimal. So now we will check the next digit. This is 7. So will 7 give a share to this 5? Yes, ma'am. Yes, it is. So 353.6. अब देखिए they are saying use appropriate unit. This is millimeter. So यहाँ पर area है तो it will be millimeter square. ठीक है बेटे? So now we are going to find out the perimeter. ठीक है? So what is the perimeter of a semicircle? Ma'am, pi r plus diameter. That's right. Pi r plus d. ठीक है। पाई आर कैसे? 2 पाई आर को हमने 2 से डिवाइड किया था, 2 कैंसिल हो गया था तो पाई आर बच गया था एंड डी इज फॉर दिस लाइन, ठीक है। सो नाउ पाई आर का मतलब है 22/7, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, एंड प्लस डी। सो इफ 15 इज द radius, what would be the diameter? 30 would be the diameter, ठीक है। सो नाउ वी कैन जस्ट सिंप्लीफाई 15 into 22। यहाँ पर आप ना अगर आपको सूटेबल लग रहा है तो यू कैन यूज 22/7 की जगह 3.14 भी यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है। सो 3.14 अगर यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई 314 विद 15, ठीक है। 22 7 15 एंड देन वी कैन यूज 314, ठीक है। सो ऐड दीज टू 7 and 4. Now put the decimal back because there were 2 decimal places, so decimal will come back here. So this is 47.10, okay, plus 30. So if you will add this 30, it will be 77.1. ये पहले ही 1 decimal पे है, so you can just cancel this 0. And the unit will be millimeter because perimeter is also a length. ठीक है बेटे? Any question in this? Ma'am? जी ज़ैनब, जी जी। Ma'am, if we use 22.7 or 3.414, will the answers be different? A minor difference might be there because 22/7 and 3.14 both are, rounded off figures. So, a minor difference might be there. So we can just quickly, if you have the calculator, you can tell me the answer also. Probably a minor difference, maybe decimal में कुछ difference आ जाए. If you are having both answers are correct. Both answers are correct, unless it is not mentioned in the question that you need to use, for example, pi 22/7. So then there is no problem. If it is not mentioned, so you can have, okay. The same answer is coming, but you are saying, no, a little difference, ma'am. The answer is coming 47.14 and 14 ना decimal 14, only like a little bit of a little bit difference और 14 को भी हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो it will be 77.1, ठीक है। So a minor difference is acceptable, ठीक है बेटे। So do you want to do any other part?
इन क्वेश्चंस में से आई हैव ओनली डन डी पार्ट, सो कैन यू डू द रेस्ट ऑफ द 5 पार्ट्स एज अ होमवर्क, या कोई पार्ट करना है आपने? बिकॉज टुमारो इज आल्सो हॉलीडे ना, टुमारो इज आल्सो संडे। मोहित जी बेटे, Yes, ma'am. Ma'am, we can do it as homework. बेटे कैन यू डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट एज अ होमवर्क? वी हैव डन दिस पार्ट। Yes, और आपने ma'am. इसमें Okay, एरिया एंड पैरामीटर दोनों निकालने, ठीक है, एरिया एंड पैरामीटर, बिकॉज देन यू विल हैव मोर प्रैक्टिस, ठीक है। सो अब देखिए ना यहाँ पर जैसे ज़ैनब, अब इस पार्ट में देखो रेडियस इज 7, अब 7 इस केस में देखो अगर मैं 2 पाई आर है ना, सॉरी पाई आर है, अब इसमें मुझे पता है कि 7 विल बी कैंसल्ड अगर मैं 22 बाय 7 पुट करूं, तो इट्स इजियर ना, यहाँ पर आप ये कर लें। आर यू गेटिंग द yes, ma'am. पॉइंट? सो समटाइम्स Yes, रेडियस ma'am. इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो इट्स बेटर टू पुट 22 बाय 7 इन दैट केस, ठीक है, इट्स अप टू यू, Okay. ठीक है, so that you can do. So now we can do question number 2. Question number 2 is more easy because हमने पाई की वैल्यू पुट ही नहीं करनी, so very easy question. So let's do one part. Which part we should do? We can do D part again because diameter is 1 centimeter, so definitely the radius would be 0.5 5 centimeter. Point 0.5. 0.5. ठीक है, we can do this question also. So but still it would be easy. Question 2 का D part कर लेते हैं। अच्छा, question 2 के D part में they are saying write answer, give answer in terms of pi, ठीक है। So answer in terms of pi करना है, तो हमारे पास हमने पाई की वैल्यू पुट ही नहीं करनी, इसका ये मतलब होता है कि आंसर में पाई को रहने दें, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग डी पार्ट। सो डी पार्ट में जो डायामीटर है दैट इज गिवन टू यू, यहाँ पर लाइन इस तरह लगी हुई है एंड इट इज रिटन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो नाउ वी कैन यूज फॉर्मूला ऑफ एरिया। व्हाट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल? Pi r square divided by 2. पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. 2. सो इफ डी इज 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज आर? The diameter would be, sorry, the radius would be 0.5 centimeter. ठीक है, 0.5 कर लें। 0.5 नहीं करना तो यू कैन ऑल्सो डू 1.1/2 सेंटीमीटर, यानी हाफ, ठीक है। हाफ इज आई थिंक सो मोर इजी, तो वी कैन, यू पाई की तो हमने वैल्यू डालनी नहीं है। अच्छा, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, आर की जगह पे हमने लिखना है 1/2, इसका मतलब है 1/2, सो 1, इसको बल्कि मैं सेपरेट कर लेती हूँ, लाइक इस तरह, पाई बाय 2 है ना, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर करना है। नाउ आर इज 1/2, ठीक है, इसका मतलब है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, दैट वुड बी आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो पाई विल रिमेन एज इट इज एंड दिस इज 2 into क्यूब बन जाता है, तो दिस इज 8, ठीक है, पाई बाय 8। अब देखिए हमारे पास यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दिस वुड बी मोर इजियर बिकॉज हमने पाई की वैल्यू नहीं डालनी, कैलकुलेशन आसान हो गई है। And why did you put centimeter square? सॉरी, Why did you put centimeter square? बिकॉज इट इज एरिया ना, Oh yeah. this is the unit, you know, Yes, ma'am. centimeter square is the unit, ठीक है। So that is the unit of this circle, semicircle, ठीक है। Now comes the perimeter. So what is the formula of perimeter of semicircle? मोहित, अभी हमने क्या Pi लिखा है? r plus Pi r diameter plus d, d ठीक है। plus So pi r because of this क्या कहते हैं, curved side, and the curved side. diameter is this straight line, ठीक है। So pi की हमने वैल्यू डालनी नहीं है, so pi into radius is 1/2 plus d, देखो d is 1। अच्छा, अब this is pi by 2 plus 1, ठीक है। अगर आप इसको, अगर आप देखें, you cannot add it unless you will not put the value of pi. So what you can do, you can just take the LCM maybe. तो अगर हम इसका LCM लें, because this is 1/1 now, make the denominator same. So this will be 2 and it will be pi plus 2. So that is centimeter, ठीक है। So ये आप कर सकते हैं, वरना if you will write down that this one is the answer, तो that's also fine, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2r put करना चाहते हैं तो that is also your choice, ठीक है। So because we are not putting the value of pi, so we cannot solve any further. This is the answer. Any question, Moeed, Abrish, Zainab? Any question, bete? No, ma'am. No. No, No, it is ma'am. clear? All right. Yes, So now comes the rest of the 2 parts of this worksheet. So these are the questions you need to do as a home task. We have done D part of both questions. ठीक है, I will send you those questions also. D part हमने कर लिए, बाकी आपके पास you need to do it as a homework. ठीक है. So shapes बनाने की बजाय if you want to write down radius or diameter in the question, you do that. लेकिन आपने बहुत conscious होना है. If that line is, देखो कई radius हैं और कई diameters हैं. ठीक है, so you need to be very careful of that while putting the values in the formulas. ये देखें कई diameters हैं, आप देखें A part में diameter is given, so definitely radius half हो जाएगा. यहाँ भी diameter है, यहाँ भी diameter है, ये radius है, diameter. So ये आपने बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है, ठीक है। किसी में रेडियस गिवन है और किसी में डायमीटर गिवन है, ठीक है बेटे। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। ऑलराइट, सो फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर सर्कल, ठीक है। वी कैन सॉल्व इट हियर। सो क्वार्टर सर्कल है, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वार्टर? pi r square divided by 4. Pi r square divided by 4, ठीक है। Radius is 10, so you can simply do that. So let's say 3.14.
मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखिए मैंने 3.14 किस लिए पुट किया है कि बिकॉज इट इज 10 सेंटीमीटर, सो इसकी वजह से वी कैन जस्ट मूव द डेसिमल, है ना। Yes. 10 है तो फिर डेसिमल मूव हो जाएगा ना। व्हेन दिस Yes. 10 विल बी मल्टीप्लाइड, डेसिमल विल मूव वन स्टेप फॉरवर्ड, एंड व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विद दिस 10, सो डेसिमल विल मूव वन मोर स्टेप। तो इसका So आंसर ma'am, क्या आएगा? 3 314 पॉइंट और divided with 40. 314 बाय 4, है ना। सो दिस वाज सिंपल। अगर मैं 22 बाय 7 करती तो मुझे ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती। आप देखें 4 4 7s are 28, And 34 78 पूरा 78.5 78.5, and the unit would be centimeter centimeters square. square. ठीक है, दैट इज द एरिया। अब पैरामीटर कैसे निकालेंगे? पैरामीटर का क्या फॉर्मूला बेटे? पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट, क्वार्टर का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज दिस कर्व्ड लाइन? इसका क्या था? Ma'am, pi r 2 पाई आर divided डिवाइडेड बाय 4 करते हैं ना, 2 तो ये क्या बचाता है? पाई आर बाय 2, 2 plus राइट, that d plus d. प्लस डी। ठीक है, सो पाई आर बाय 2 बाय प्लस डी। अब पाई हम 3.14 ही पुट करते हैं बिकॉज दिस रेडियस इज 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस डी। अब डी क्या होगा? 10 2 आर होता है ना, डी क्या होता है? 2 20 आर, 20 हो जाएगा। 20. ठीक है, सो दिस विल बी 20। ठीक है बेटे, अब देखें इस पॉइंट की वजह से डेसिमल विल मूव, इट वुड बी 31.4 डिवाइडेड बाय 2, और ये बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज हाफ ऑफ 314? व्हाट इज हाफ ऑफ Ma'am, 314? 157. 157. Mohit, you were also saying the same, 157, Yes. 157. or decimal will stay here, right? So 15.7 plus 20, so it would Yes. be 35.7 35 sides. सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, was it easy? Like अगर आपको formulas याद हो तो you are able to Yes. solve it, straightforward questions है। Yeah. Abrish, is that fine? Yes, ma'am. Okay, now this is interesting. This is 3/4, you know. So this is 3/4, like one, like 3/4 of a circle. ठीक है, तो we will use the area. Area is easier ना, so area को तो हम simply लिख सकते हैं। देखो, the area of full circle is pi r square. So we are talking about 3/4. We will write down. देखो, pi r square is the area of the whole circle. हमने 3/4 parts लेने हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3 by. Out the first the whole circle, the area of the whole circle, That's and then right. You have noticed. by the You have area noticed of that. That's right. 78.5. So the That's diameter right. is exactly the That's same. right. That's right. हमने इससे पिछले क्वेश्चन में इसी सर्कल का क्वार्टर निकाला है, तो ज़ैनब इज सेइंग वी कैन डू दैट कि हम पूरे सर्कल का एरिया निकालें और उसमें से ये माइनस कर दें। लेकिन दिस विल नॉट बी द केस ऑलवेज, देयर माइट बी अ थ्री पार्ट ऑफ अ सेमी सर्कल वेयर लाइक यहाँ पे 10 हो, फॉर एग्जांपल 7 हो, तो देन वी कैन स्टिल डू दीज टू मेथड्स। एक मेथड ये होगा कि हम पूरे सर्कल का एरिया निकालें और उसमें से क्वार्टर का एरिया माइनस कर दें। बट देयर इज अनदर वे ना, डायरेक्ट मेथड भी तो हो सकता है। पाई आर स्क्वायर इज द टोटल एरिया, है ना। हम उसी को 2 से डिवाइड कर रहे थे, उसी को 4 से डिवाइड कर रहे थे, अब हमने उसको डिवाइड कर दिया 3/4। हाउ डू आई नो इट इज 3/4? बिकॉज दिस सर्कल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 3/4 ऑफ दिस सर्कल। ऐसे ही है ना, हम इस टोटल एरिया का 3/4 लेना चाहते हैं, फ्रैक्शंस को याद करें तो। ठीक है, सो वी कैन नाउ पुट द वैल्यूज बिकॉज इट इज 10 सेंटीमीटर, सो आई एम स्टिल यूजिंग 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए दिस इज 314, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 314 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप 314 को डिवाइड करें तो ये क्या आता है? बल्कि ये 2 से डिवाइड कर देना, तो दिस विल बी हाउ मच? 157। 157. इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 21 15 16 17 371 371 नहीं, 7 3s are 21 15 16 17 and 471, right? 471 divided by 2। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करें बिकॉज इट इज जस्ट हाफ ऑफ दिस नंबर, सो दिस वुड बी 235.5. 235.5 एंड एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब्रिश इज दिस क्लियर? मोईद, अब्रिश, अब्रिश आज आप चुप चुप क्यों हैं? ठीक है बेटे, so now comes the parameter. अच्छा, parameter is tricky, you know, you need to think before writing the formula. अब parameter में we have two things to add. One is this curved surface, ये वाला, ठीक है, एंड ये तो हमें पता है r plus r d बन जाएगा। ठीक है, आप देखें जो टोटल पैरामीटर है ना, सर्कमफ्रेंस, टोटल सर्कमफ्रेंस इज 2 pi r, 2 pi r। हमने उसका कितना पार्ट लेना है? हमने उसका वही 3/4 पार्ट लेना है, ऐसे ही है ना? आर यू गेटिंग द पॉइंट?
हमने टोटल सर्कमफ्रेंस का 3/4 पोर्शन लेना, जब ये लेते थे हाफ होता था, अब ये भी ऐड करना है, तो टोटल इज 3/4 ऑफ 2πr। ठीक है बेटे, वी आर टॉकिंग अबाउट द कर्व्ड सरफेस। अब देखिए दिस 4 कैन बी कैंसल्ड, तो देयर दिस वुड बी 3πr/2। इज दिस पॉइंट क्लियर मोहित? ये क्लियर हुआ है कि ये 3πr/2 क्यों बना है? जी बेटे, मोहित आपको समझ आई है? जैनब आपको? अब्रिश का तो मुझे आंसर मिला है। ये समझ आइए कैसे बना 3πr/2? यस मैम। मोहित आपको समझ आइए बेटे? यस मैम। एक दफा फिर देखते हैं। देखो टोटल जो सर्कमफ्रेंस है ना, टोटल सर्कमफ्रेंस, द टोटल सर्कमफ्रेंस इज 2πr। ठीक है, नाउ वी नीड टू टेक 3/4। हमने 3/4 पार्ट लेना है, बिल्कुल जैसे पहले क्वेश्चन में किया। अब देखो हमने क्या करना है, 2πr को 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। देखो जैसे पहले हमने हाफ लेना था तो हमने उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, जब हमने क्वार्टर का लेना था तो हमने इसी को डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। अब हमने 3/4 लेना है तो इसका मतलब है 3/4 हमने मल्टीप्लाई करना है। नाउ दिस 2 विल बी कैंसल्ड, तो दिस विल बी 3/2πr। ठीक है, सो प्लस आपने क्या कर देना है, जो स्ट्रेट दो लाइंस हैं दैट इज द डी। ठीक है, ये आपके पास क्या बनता है, प्लस डी। बेटे इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई सेड दिस इन द स्टार्ट कि इन क्वेश्चंस में यू नीड टू मेमोराइज द बेसिक 2 फॉर्मूलाज। अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज आते हैं ना, तो कोई भी शेप आपके पास आ जाए, क्वार्टर आ जाए, हाफ आ जाए, या फिर 3/4 आ जाए, आप उस फॉर्मूलाज को चेंज कर सकते हैं खुद से। ठीक है, अगर आप नहीं चेंज करना चाहते तो फिर आप लिस्ट बना लें और ये सारे फॉर्मूलाज याद कर लें। अच्छा, नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज 3 into 3.14 into 10 divided by 2 plus d is 20। ठीक है, सो 3.14 था तो अभी नाउ इट्स 31.4। सो 31.4 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 3s are 12, 3 4 and 3 3s are 9, so 94.2 आता है। 94.2 divided by 2 plus 20। What is half of 94.2? 47.1. 47 हाँ, 0.1. or मैम 47.1 plus 20। ठीक है, 67.1. 57 नहीं नहीं, that will become 100। 47 ही होगा बेटे, 2 4s are 8 and 2 7 4 ही होगा। ठीक है, सो द टोटल इज 67.1 एंड दिस इज पैरामीटर, सो सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? अब्रिश इज इट फाइन? मुश्किल तो नहीं है? नो मैम। ऑलराइट, सो मुईद आपको भी समझ आ रही है बेटे? यस मैम। Alright, so taking the screenshot of these questions, I can share with you later. Acha, now comes the questions from the book. They are also very less questions from the book, just 2 questions हैं और बिल्कुल straightforward question है. Let me show you also, I think so it is chapter number 12. So let me show you the curriculum document. ये हैं आपके पास questions. Exercise 12C के just 2 question हमने करने हैं. So let's see what are those 2 questions. ठीक है, बिल्कुल छोटा सा topic है. So I have opened the book also. So this is the book. Oh, where is the book? Just closed maybe. It's okay. Just we can take 1 second and we can open it. So it's like book 1, 12C, 12A और B आपने 6th class में की थी when you did questions of cube and cuboid. ठीक है, so and rectangle first term में I think so आपने किए थे cube cuboid की तरह कह रही हूँ, आपने किए थे ट्राइंगल्स। ठीक है, ये वही वाला चैप्टर है, उसी की 3rd एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उसी की दिस इज चैप्टर 11। इसी की पहली 2 एक्सरसाइजेज आपने ग्रेड 6 में की थी। लेट मी शो यू। फर्स्ट एक्सरसाइज वाज अबाउट, यू कैन सी रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड देन देयर वाज ट्रायंगल। ये आप कर चुके हैं पहले। ठीक है, 12A कंपोजिट शेप्स, देन पैरेललोग्राम, और ये आपने पता नहीं आई थिंक सो किए हैं या नहीं, कर लिया ना पैरेललोग्राम एंड दीज, है ना, ये आपने 6 में किया ना बेटे? किए? यस और नो? यस मैम, वी हैव डन। ये आपने, यू हैव डन इट। ठीक है, सो नाउ कम्स द सर्कल। ठीक है, सर्कल में दीज आर द 2 क्वेश्चंस ओनली व्हिच यू नीड टू डू, ये वाले। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके हैं ही नहीं, ये 2 आपने करने हैं सिर्फ।
ठीक है, सो वेरी वेरी इजी, लेट्स सॉल्व. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन आल्सो एंड इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज रेडियस इज गिवन. आपने सर्कमफ्रेंस यानी पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस जिसे कहते हैं, आपने सर्कमफ्रेंस और एरिया निकालना है. और आपने, मजे की बात है कि आंसर, अच्छा क्या लिखा हुआ है, इफ द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट स्पेसिफाइड सो गिव योर आंसर टू द थ्री डिजिट. ठीक है, इसको तो हमने पाई में ही किया हुआ फर्स्ट पार्ट को. अच्छा हम इसका सेकंड और थर्ड पार्ट कर लेते हैं. वो किस लिए? क्योंकि सेकंड पार्ट में द पैरामीटर इज गिवन, आपको रेडियस नहीं पता. ठीक है, और थर्ड पार्ट में आपको एरिया गिवन है, आपको रेडियस और सर्कमफ्रेंस निकालना है. ठीक है, सो इट्स एक्सरसाइज 12C. We can do the first question. I'm skipping. We can do the second and the third part. ठीक है, so just give me a minute. Second question, exercise 12C का सेकेंड पार्ट कर लेते हैं. ठीक है, sometimes you know they can, the missing values can change. अच्छा, we are going to do exercise 12C question 1 का B part. ठीक है, so B part में the radius is not known and the area is also not known. You need to find them. Or the circumference is given as perimeter या circumference is 34.6 millimeter centimeter, 34.6 centimeter. ठीक है, so the first thing is that we need to find out radius. ठीक है, और ये देख लेते हैं कि it is what, it is a circle because it is not mentioned. ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताएं, what is the formula of perimeter of circle? What is perimeter of circle? जी बेटे, मोहित, अब्रेश, जैनब, किसको याद है पूरे सर्कल का पैरामीटर क्या होता है? मोहित एंड अब्रेश, व्हाट इज पैरामीटर ऑफ अ सर्कल? जल्दी से बताएं जी. मोहित, 2 पाई r, द पैरामीटर इज 2 पाई r. ठीक है बेटे, अब देखें आपकी प्रीवियस नॉलेज यूज होने वाली है. हम p की जगह पुट कर देते हैं 2 पाई r इज इक्वल टू 34.6. अब देखिए r हमने निकालना है, तो जो एक्स्ट्रा दोनों चीजें हैं, ये आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी इन ग्रेड 6. ये 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई होना है व्हेन इट विल कम ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, वेयर इट विल गो दिस 2 पाई. लीनियर इक्वेशंस में इफ 2 पाई इज मल्टीप्लाइड हियर, हमें r चाहिए ना, r अकेला करना है हमने, r की वैल्यू हमने निकालनी है. सो दिस 2 पाई विल गो ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, सो इट विल गो वेयर, it is multiplied here, so on the other side of the equation it will go in the, it will go in the division, so it will be coming here. Very good Abresh. ठीक है, so 2 pi is coming here. अब देखें, you can just cancel this 2 और ये 34 will become 17.3. now this is very interesting, this is 17.3 divided by 3.14. अब देखिए डेसिमल में हम डिवीजन तो कर सकते हैं, लेकिन हमें डिवीजन सिर्फ ये पता है जब व्हेन देयर इज अ होल नंबर बिलो. अब यहाँ पे होल नंबर ही नहीं है, डेसिमल है, तो देयर इज अ यू नो दैट सिंप्लीफिकेशन का एक तरीका होता है, शायद आपने किसी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी हो कि यू कैन मूव द डेसिमल इक्वल नंबर ऑफ स्टेप अहेड, शायद 6 में ही पढ़ा हो. तो देयर इज अ 2 डेसिमल प्लेस, वी कैन पुट अ 0 हियर, और इसको आप 2 डेसिमल प्लेस आगे ले आएंगे, यानी आपने डेसिमल खत्म कर दिया. दिस इज द क्विकेस्ट वे. इसका मतलब है इट्स 1730 डिवाइडेड बाय 314. The decimal is gone now. ठीक है, now with which number I can divide? Now we will divide it. Divide it with 2 maybe. Simplify कर लेते हैं ना, थोड़ा सा simplify Yes. कर लेते हैं. अगर हम 2 से divide करें तो 2 8 2s are 16, 13, 8 2s are 12, 65, 820. No, no, 25, 25. ठीक है, and then you can divide it with 2 also, 2 1s, and then 11, 2 5, and 2 7s. I think so now I cannot divide, so I need to, like I cannot simplify now, I need to divide it. 825 divided by 157. So 157 is approximately 160. ठीक है, why I do calculations here, ताकि आप जब पेपर में कैलकुलेशन करें तो आपको याद हो कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है. 160 will be the closest Ma'am, value this would is be what? non-terminating decimal. Non-terminating decimal. Ma'am, the answer Non-terminating is 0. Zero? 0.1903. 0 And the 0 तो नहीं हो सकता बेटे, देखिए ना ये 150 और ये 800 है, तो it would be something like 6 or 7, 6 या 5 or 6, 5 point maybe, or 6 point. 5.25. I made a 5 mistake. point, ठीक है बेटे, 5.25. that is your radius. ठीक है, so this is your radius 5.25. ठीक है बेटे, so now we are going to do, now we, अब रेडियस पता चल गया तो अब तो कोई मुश्किल एरिया की है ही नहीं. सो एरिया का फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर. ठीक है, सो पाई इज, आप पाई डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, इट्स अप टू यू. सो
पाई को नहीं डालते लेट्स से, तो 5.25 का स्क्वायर क्या होगा बेटे? राउंडिंग ऑफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। पाई को पाई रहने दे बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट इट, तो आंसर पाई में ही कर देते हैं। 5.25 का स्क्वायर कितना आता है पेपर में? यू कैन राउंड इट ऑफ आल्सो, यू नो, to make the Yes. question simple. So can anyone tell me what is the square of 5.25? 25 25 होगा या 26 होगा समथिंग? 0.25 का स्क्वायर क्या होगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होता है? 25 का स्क्वायर क्या होता है बेटे? 625। 25 का स्क्वायर 625 होता है ना? आई थिंक सो, नहीं? Yes, ma'am. इज इट? Ma'am, wait. बेटे ये मुझे कैलकुलेटर से बता दें वरना आई कैन ओपन द कैलकुलेटर हियर मे बी। 5.25 का स्क्वायर पेपर में, यू नो, बिकॉज 27.5625. 27 point Ma'am, of 5.25. जी जी Yes, 20 or 5.25. Yes, ma'am. Correct. ठीक है, 625 or 56. दैट इज ये फाइनल आंसर होगा ना, तो द यूनिट ma'am. वुड बी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको पेपर में करनी पड़ेगी, या मतलब यू कैन यू हैव टू डू इट बिकॉज यूजुअली पेपर में ना छोटे छोटे नंबर आते हैं, यहाँ पे पैरामीटर वाज सो बिग, तो वैसे इतना कैलकुलेशंस तो एक क्वेश्चन के लिए कर ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ वी कैन यूज द डू द लास्ट पार्ट, इसका सी पार्ट है। अच्छा, उसमें ना द एरिया इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड आउट एरिया इज 302, ठीक है। एरिया इज गिवन एज 302 सेंटीमीटर या मिलीमीटर, आई थिंक सो 302 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड वी नीड टू फाइंड रेडियस एंड पेरीमीटर, ये सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सो एरिया से हमने रेडियस निकालना है, हमें पता है एरिया इज दिस, एरिया का फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर इज 302। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, आपने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर इज, यहाँ पर आपको राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी, 302 डिवाइडेड बाय, अब दिस पाई विल कम हियर, ठीक है। अब देखो पाई से डिवाइड करना है तो 3.14 भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, और वी कैन यूज 22/7। तो क्या करें, 22/7 अगर मैं लूं तो दिस विल बी 302 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22, बिकॉज यहाँ पर जब आप 22/7 पुट करते हैं ना तो दिस 7 विल गो इन द न्यूमरेटर, ठीक है बेटे। सो नाउ व्हाट टू डू, आई कैन डिवाइड इट विद 2, 11, और 302 का हाफ क्या होगा? 151, 150 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये कितना आ जाएगा? 7, 7 5 35 और 7 10, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय 11 आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट लेना है। अब देखिए व्हाट इज द आंसर ऑफ डिवीजन? 1057 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं, सो 11 9s are 99, Ma'am, 96.09. 96.09, ठीक है, 96 अप्रोक्सीमेट। Now देखिए this is दिस going इज on. 96.09 अगर आप कर दें तो हमें, क्योंकि हमारे पास तो कैलकुलेटर ही नहीं है तो हमें क्या पता 96, तो हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेशन यूज करते हैं। यहाँ पर आपने पीछे एक टॉपिक पढ़ा है एस्टिमेशन का, आपको याद है ना मोहित? एस्टिमेट कर रहे थे हम। सो हमने ये देखना है कि 96 इज क्लोजेस्ट टू विच स्क्वायर नंबर, तो कैन यू टेल मी आर की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि आप एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। 96 इज क्लोजेस्ट टू विच स्क्वायर नंबर, जल्दी से बता दें। आप मुझे ये बता दें 96 से बड़ा स्क्वायर नंबर क्या है और 96 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या है? जी बेटे मोहित, अब्रेश, ज़ैनब, 96 से बड़ा स्क्वायर नंबर क्या है? 10 का स्क्वायर विच इज 100, ठीक है। और 96 से छोटा स्क्वायर नंबर इज 81, 9 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज क्लोज टू 100, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, r इज अप्रोक्सीमेटली 100 का स्क्वायर रूट, सो r इज 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, सॉरी, ठीक है। यू कैन यूज दिस मच एस्टिमेशन फॉर योर, बल्कि ये जहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेते हैं हम हमेशा अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ठीक है। बल्कि आप कई जगह पे नेक्स्ट टर्म में व्हेन यू विल टेक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया तो समटाइम्स आप क्यूब रूट भी लेते हैं, तब भी आप एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज r, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 2 पाई r, ठीक है। सो 2 into 3.14 into r 10, ठीक है। सो दिस इज लाइक 31.4 into 2, so what is double of 31.4? 62.8. 62.8, very good, 62.8 millimeter square नहीं होगा because this is also a length, ठीक है बेटे। So any question in this, is it clear? No, ma'am. Yes.
Yes, all right. So Yes, ma'am. the last is the second question. Second question में बाकी कोई मुश्किल नहीं है. It's a quarter of a circle. ठीक है. We need to find out area and the perimeter. There is just this one notation which is used. आपको ये notation पता होना चाहिए. Do you know what is this sign? ये वाला. ये sign क्या होता है? Ma'am, What does when this sign? equal to each other. They Yeah, are equal to each other. Very good. equal. So वैसे भी हमें अगर ये ना भी साइन बना होता तो हमें पता है कि ये एक सेमी सर्कल, एक क्वार्टर है, एक सर्कल का. तो उस सर्कल का अगर ये रेडियस है तो डेफिनेटली दिस इज आल्सो रेडियस. असल में ये दोनों रेडियस है ना. तो अगर वो ये ना भी लिखते ना, ये साइन ना भी यूज करते, तो हमें पता था ओ क्यू और ओ पी इक्वल है. यहाँ उन्होंने लिख भी दिया है. ठीक है. अगर ना भी लिखते ना ओ पी ओ क्यू इक्वल है, हमें फिर भी पता था कि रेडियस है डेफिनेटली व्हाटएवर इज द लेंथ हियर, रेडियस इज सेम हियर. ठीक है. सो यू नीड टू डू this question also as a home task. Can you do it? Yes, ma'am, this is easy. ठीक है.